Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 11 from class 7, that is transportation in animals and plants. So if you have missed the exercise questions of any of the chapter from class 7, the link of class 7 is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Now, the first part of the exercise is section A, very short answer questions. In that, question number 1 is what kind of tissue the blood is. जो blood है वो किस type का tissue है. So that is connective tissue. Now question number 2, which kind of cells in human blood transport oxygen. तो हमारे ह्यूमन ब्लड में जो डिफरेंट सेल्स है उनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सेल है जो कि जो ह्यूमन ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करता है. सो द आंसर इज रेड ब्लड सेल. क्वेश्चन नंबर 3, द यूरिन ऑफ अ पेशेंट इज फाउंड टू कंटेन एक्सेस शुगर. What does it indicate? अगर यूरिन में किसी पेशेंट का एक्सेस शुगर पाया गया है तो इसका क्या मतलब बनता है. तो इसका मतलब बनता है द पर्सन इज डायबिटिक. इज डायबिटिक मीन्स उस पर्सन को डायबिटीज़ है. सो द पर्सन इज डायबिटिक. नाउ नेम द 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड वेसल्स प्रेजेंट इन वेस्कुलर सिस्टम. सो उन 2 टाइप ऑफ सेल जिसको हम वेसल्स कहते हैं उनके नाम बताने हैं जो कि वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है. सो दीज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स और वेसल्स आर कॉल्ड जाइलम एंड फोलियम. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच process allows plants to lose water through their leaves. So this is a very easy question कि किस process के through जो plants है वो excess जो water होगा अपने leaves के through atmosphere में transfer करेंगे. That is transpiration. The process name is transpiration. Understood? Moving on to next section, that is section B, short answer questions. पहले क्वेश्चन में पूछा है नेम द वेरियस components ऑफ द ब्लड. तो ब्लड के जो जितने भी components हैं उनके नाम बताने हैं. सो पहला हो गया रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, देन ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेरम. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट components ऑफ ब्लड. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. Which of them carry oxygen rich blood from heart to other parts of the body? तो there are 3 types of blood vessels. कितने टाइप के blood vessels हैं? 3 types के. कौन कौन से हैं? Veins, arteries and capillaries. क्लियर. अब इन तीनों में से कौन सा जो ब्लड वेसल है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है बॉडी के? दैट इज arteries carry oxygen rich blood from the heart to other parts of the body. So the answer will be arteries who carries the oxygen rich blood. Question number 3, what is pulse and pulse rate. Pulse और pulse rate क्या है? So each time the heart pumps the blood out, it rushes through the arteries and produces twitching movement or throbbing कॉल्ड पल्स. तो जो धक धक वाली फीलिंग हमें आती है जब भी हार्ट पंप आउट करता है तो वो आर्टरीज के थ्रू जब जाता है तो एक ट्विचिंग मूवमेंट करता है या थ्रॉबिंग मूवमेंट करता है जिसको हम धक धक की बात कहते हैं. ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट पल्स. ओके. नाउ द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट. 1 मिनट में कितने पल्स बीट करेंगे दैट विल गिव यू द पल्स रेट. ठीक है. सो दिस इज पल्स एंड व्हाट इज पल्स रेट. वी हैव डिफाइंड देम बोथ. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ऑर्गन्स यूज्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द रिमूवल ऑफ. फर्स्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट. इन 3 टाइप के वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन से ऑर्गन को यूज करता है. सो पहले देखते हैं सॉलिड वेस्ट. तो सॉलिड वेस्ट इज रिमूव्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ feces from anus. ठीक है.
Next, liquid waste is removed in the form of sweat and urine through our skin and urethra respectively. Means जो sweat है वो skin के through और जो urine है वो urethra के through remove होगा human body से. Then lastly is sweat and it is removed in lungs and exhaled through the nose. ठीक है, so these are the three types of waste and how these kind of waste are removed from human body. Next is question number 5. Name the various factors affecting transpiration. तो loss of water from the plants through leave into the atmosphere उसको हम कहते हैं transpiration. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे ये ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है. सो द फर्स्ट फैक्टर इज टाइम ऑफ द डे. दिन के किस समय वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है. दैट मीन्स द स्टोमाटा इन लीव्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट. सो मोर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे. ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर. सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर at higher temperature. So transpiration on a hot day is more than that on a cold day means जो transpiration है जब temperature बहुत ज़्यादा होगा, means जब hot day होगा, बहुत ही गर्मी वाला दिन होगा, उस दिन transpiration बहुत ज़्यादा fast होगा. Next is humidity. On a humid day, the transpiration is lower because the air already contains a lot of moisture. Humidity क्या होता है? The amount of water vapor present in the air. जितना water vapor air में present है उसको हम कहते हैं humidity. तो अगर उस दिन already बहुत ज़्यादा humid होगा, means water vapor already atmosphere में ज़्यादा होगा, तो excess water vapor जो leaves release करेंगे वो नहीं carry out कर पाएगा. इसीलिए ऑन अ ह्यूमिड डे ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपिरेशन का रेट होगा वो कम होगा. सो ट्रांसपिरेशन इज लोअर ऑन अ ह्यूमिड डे. नेक्स्ट जो है दैट इज विंड. विंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. विंड की वजह से अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा. क्यों होगा? दिस इज बिकॉज द विंड टेक्स अवे वाटर वेपर फ्रॉम द नेबरहुड लीव्स. क्योंकि जो विंड है वो वाटर वेपर को जो लीव्स हैं वहाँ से ले जाएगा. नेक्स्ट इज लाइट. लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन बिकॉज लाइट कॉजेज द स्टोमाटा टू ओपन. तो वैसे ही लाइट की बात करें तो लाइट भी इफेक्ट करता है. कैसे इफेक्ट करता है? जब रोशनी होगी तो उस ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा क्योंकि लाइट की वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है. अगर स्टोमेटा ओपन होता है तो मतलब ऑब्वियसली लॉस ऑफ वाटर भी होगा. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. उसमें पूछा है कि नेम द वेरियस ब्लड ग्रुप्स. पहले हमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के नाम बताने हैं. तो क्या क्या है? ए है, बी, ए बी एंड ओ. नाउ विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर और किसको माना जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ठीक है, तो पीपल हैविंग ओ, ब्लड ग्रुप ओ आर यूनिवर्सल डोनर और पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट. ठीक है, यूनिवर्सल डोनर मीन्स वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट मीन वो किसी का भी ब्लड ले सकते हैं. ठीक है, तो डोनर विल बी ओ ब्लड ग्रुप एंड रेसिपिएंट विल बी ए बी ब्लड ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें डिफरेंस पूछा है किन के बीच में? आर्टरी एंड अ वेन. सो आर्टरी क्या होता है? दे आर थिक वॉल्ड वेयर एज वेन्स आर थिन वॉल्ड. ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टरी दे विल कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से दूसरे पार्ट्स तक, लेकिन जो वेन्स है दे विल कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है दैट इज सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन. जो आर्टरीज है वो बहुत ज़्यादा डीपली सिचुएटेड है हमारे स्किन के, लेकिन जो वेन्स है वो हमें ही सिचुएटेड है. ठीक है, स्किन के जो बहुत करीब है दोज आर वेन्स और जो बहुत ज़्यादा डीपली सिचुएटेड है दोज आर आर्टरीज. ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंस बिटवीन दीज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट एंड द करस्पॉन्डिंग सिस्टम इन्वॉल्व. तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था. दैट इज सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है एंड रेस्पिरेटरी वेस्ट है जिसको हम गैसियस वेस्ट भी कह सकते हैं.
ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट क्या है, जो जनरेट होते हैं, रिमूव होते हैं फीसिस के रूप में थ्रू अवर एनस। लिक्विड वेस्ट क्या है, वो रिमूव होते हैं हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम बोल सकते हैं, यूरिन के रूप में वो फॉर्म होते हैं या फिर स्वेट के रूप में दे आर फॉर्म, एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्किन और एल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, दैट इज फ्रॉम यूरेथ्रा। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी वेस्ट। वो क्या है, द रेस्पिरेटरी वेस्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, दे आर कैरिड बाय द ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, लंग्स तक वो कैरी आउट होंगे। देन द एल्वियोली इन द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इट इज एक्सेल्ड थ्रू द नोज। तो वो लंग्स तक आएंगे एंड देन नोज के थ्रू रिमूव कर दिए जाएंगे हमारी बॉडी से जो भी हमारे रेस्पिरेटरी वेस्ट है, मीन्स जो गैसियस वेस्ट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मीन्स हमें पता है कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर। रूट हेयर की मदद से वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ द रूट हेयर आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वाटर सराउंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं वाटर के, जो कि सॉइल पार्टिकल्स में होते हैं। Now water moves from the root hair to the root tissues and then to the xylem in the root. तो water जो है अब root hairs से that is root tissues तक पहुँचते हैं, then वो xylem जो हमारा vessel है, ठीक है, उसमें जाके पहुँचता है and the absorbed water then moves up the stem through the xylem. तो देन वो जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है वो जाइलम के थ्रू स्टेम पे पहुंचता है। ठीक है, सो द वेसल्स यूज्ड हियर इज द जाइलम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसकोलेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसकोलेशन ऑफ फूड प्लांट्स में इसका मतलब क्या है। लेट्स सी। ट्रांसकोलेशन का मतलब होता है इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड from the leaves, the site of food synthesis, to other parts of the plant. ठीक है, मतलब ट्रांसकोलेशन का मतलब क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ से, जहाँ पे वो बनता है, प्लांट्स में वो लीव्स में बनता है, तो लीव्स से दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन खाने का इज नोन एज ट्रांसकोलेशन। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से इट एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर। Now next is the carbohydrate synthesized in leaves and hormones synthesized at the shoot and root tip are transported to other parts of the plant through phloem. तो जो vessel use होता है यहाँ पे, transportation vessel जो यहाँ पे use होता है, that is phloem. For transportation of water we use xylem, plants use xylem, and for transportation of food it is using phloem. ठीक है, नाउ द फूड मॉलिक्यूल्स एंटर द फोलियम सेल्स फ्रॉम मेसोफाइल सेल्स टू द लीफ, और मेसोफाइल लीव्स ऑफ द लीफ, मेसोफाइल सेल्स ऑफ द लीफ, सॉरी। ओके, सो फूड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अब वो फोलियम सेल्स में आएंगे। कहाँ से, जो लीव में मेसोफाइल सेल्स प्रेजेंट है वहाँ से। अब आफ्टर एंटरिंग फोलियम द फूड मॉलिक्यूल्स में मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इन द प्लांट। तो फोलियम के आने के बाद वो दूसरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मीन्स अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, एनीवेयर वेयर देयर इज नीडेड। क्लियर। सो दिस इज हाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपनिंग, एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द साइड ऑफ सिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अंडरस्टूड। नाउ सेक्शन डी, take the odd one out giving reason. First is blood, hemoglobin, white blood cells, oxygen transport in the body. So correct answer, that is the odd one out here, will be white blood cell. क्यों? Because others are concerned with the role of blood in
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बाकी सब जो है वो ब्लड का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम है उससे ज़्यादा कंसर्न्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेन्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट ऑरिकल। नाउ इनमें से ऑब्वियसली जो हमारा राइट ऑरिकल होगा दैट विल बी द ऑड वन आउट बिकॉज द अदर्स आर कंसर्न्ड विथ वेन्स, ठीक है। सॉरी, आई हैव सेड इट रॉन्गली, इट विल बी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, राइट ऑरिकल नहीं, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्यों होगा? बाकी सब जो है वो कंसर्न्ड है वेन्स से, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी आउट करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन रिच ब्लड विल बी द ऑड वन आउट हेयर, नॉट द राइट ऑरिकल। क्लियर है बात? So oxygen rich blood is the correct answer for question number 2. Next is question number 3, oxygenated blood, right auricle, pulmonary vein, left ventricle and aorta. So इसमें जो है odd one out that is right auricle, क्योंकि बाकी सब जो concerned है they are concerned with blood circulation in the body, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज gaseous waste, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, ब्लड। तो ऑब्वियसली इसमें साफ पता चल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट विल बी द ऑड वन आउट बिकॉज बाकी सब जो है वो हमारा एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही लेके बात कर रहा है, ठीक है। जैसे लंग्स, ब्लड, गेशियस वेस्ट, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट्स हो गए, ठीक है। लास्ट वन इज किडनी, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, एनस, यूरेथ्रा। तो बाकी सब जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हो गए, लेकिन एनस इज द ऑड वन आउट हियर, ठीक है। तो फॉर 5th इज द आंसर विल बी एनस। अंडरस्टूड? Moving on to our last section of this exercise, that is section E, define the following terms. पहला क्या है? blood vessel. So blood vessel हमें पता है जहाँ से blood carry out होते हैं। Now blood vessels के 3 types हैं। क्या है? arteries जो कि oxygenated blood carry करते हैं and they are situated deeply with thick walls. Next veins जो कि deoxygenated blood carry out करते हैं and they are superficially situated and are very thin. Superficially means they are very much close to our skins, ठीक है। And finally there is another type that is capillaries. Now these are very fine blood vessels supplying blood to each and every parts of the body. तो ये blood capillaries ही हैं जो different एकदम जगहों पे हमारे body के पहुँचते हैं और वहाँ पे blood supply करते हैं। Clear? Next is the human heart. So the heart in our body is located in the chest cavity with its lower end slightly towards the left. Now the size of the heart is nearly equal to our fist. अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो उसका जितना साइज बनता है हमारे हार्ट का भी nearly उतना ही साइज होता है। What does it do? हार्ट करता क्या है? इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली। जो हार्ट है वो हमारी बॉडी की जो ब्लड है उसको पम्प करता है कंटिन्यूसली ताकि सारी जगहों पे ठीक से पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टर्म गिवन इज वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। तो वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? इसमें पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स पासिंग थ्रू द स्टेम। तो रूट टिप से लेके लीव्स के टिप तक ये जो पाइप लाइक वेसल्स होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं जो कि स्टेम से होके गुजरते हैं ना। वेस्कुलर टिश्यूज या फिर वेस्कुलर सिस्टम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर जाइलम एंड फोलियम वेसल्स, ठीक है। तो इन टाइप्स ऑफ सेल्स को वेसल्स कहा जाता है, इसीलिए हमने जाइलम वेसल बोला एंड फोलियम वेसल बोला। So this is how we are going to define these 3 terms given in this section. Understood? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to discuss the exercise question of another chapter. Till then, stay tuned and thank you.